संदेश नमो नौरियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोहे संवसावणो येसो पंचनमुखारो संभवावपणासनो मंगलानंददम्बेसिं पद्मो हवै मंगलो नमो दुर्वारगदिवैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोभैवो जय स्वाणं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महाप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्रनमं श्रिय पौमा वै पमुनिसेवी अपाय ओं क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। પુણ્યશાળીના પગલે અભાગ્યનું પણ પુણ્ય ઉદયમાં આવતું શરૂ થઈ જાય એવી સ્થિતિ શ્રી સંઘની દરેક મહાનુભાવોની છે। આપણું શ્રી સંઘનું સૌભાગ્ય સરસ્વતી રત્નપ્રસાદ પદ્મભૂષણ રાજપતિ બોલે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ વિજય રત્નસુંદર શ્રી વિશ્વજી મહારાજા ગુરુજી અમારો અંતરના સામે આપો આશીર્વાદ ગુરુજી અમારો અંતરના સામે આપો
गच्छाधिपति गुरुजी हमारो वंदनान हमने आपो आशीर्वाद गुरुजी हमारो वंदनान हमने आपो आशीर्वाद गुरुजी हमारो वंदनान हमने आपो आशीर्वाद गुरुजी हमारो वंदनान हमने आपो प्रवचन बाદ પ્રવાણી પ્રભાવનો લાભ આપશો ત્યારબાદ તરત જ શ્રી મેઘ સુંદર ભવનમાં સકલ સંઘની નૌકારશ્રીનો સર્વે લાભ આપો વિનંતી કાયમી બાતાના લાભાર્થી શાહ ગિરધરલાલ ધરમચંદ પરિવાર હસ્તે ભુલા પરિવાર તરફથી દર વખતે ભાતું હોય જ છે પણ આ વખતે ગુરુ ભગવત પધાર્યા છે આનંદમાં નૌકારશ્રીનો લાભ પરિવારે લીધો છે પરિવારની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના સાથે બાળકો જિનાલયમાં ગઈકાલની મુજબ આજે પણ આંગી કરશે સકલ સંઘને દર્શન વંદનનો લાભ લેવા વિનંતી સાંજે બરાબર 7 કલાકે સંગીતકાર વંદિતભાઈ સુખિયા પધારશે સૌને ભક્તિમાં તરબોળ કરશે અને સાથે સમૂહ આરતી આપણે સૌ કરવાની છે રોજ જિનાલયમાં દીપક તો પ્રગટે છે પણ આપણા હાથે આપણા ઘરનો એક દીવો આજે પ્રભુની વર્ષગાંઠ છે તેવી રીતે આપણા ઘરથી એક દીવો લાવીએ અને આપણા સ્વ હસ્તે સમૂહ આરતી પૂજ્ય હેમરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજને ખૂબ ગમતી અને આપણા સૌમાં એમને સંસ્કાર એમને પ્રગટાવ્યા હતા આજે તે રીતે તો સમૂહ આરતી માટે પધારવા વિનંતી આવતીકાલે સવારે ગુરુ ભગવાનનો શાકુરથી વિહાર થશે આ વિદાય વેળા જેમને પણ અનુકૂળતા સવારે ખાસ પધારવા વિનંતી બરાબર 6:15 કલાકે આવતીકાલે માનસ મંદિર મુકામે પૂજ્યશ્રીનો પ્રવેશ છે બહેનોને ખાસ બેડા લઈને પધારવા માટે માનસ મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી વિનંતી છે જે પણ બહેનો પધારશે તેમના માટે બસની વ્યવસ્થા રાખેલી હશે ત્યાં પધાર્યા પછી પૂજ્યશ્રીના પ્રવેશ બાદ નૌકારશ્રીનો લાભ આપીને બહેનોએ પધારવાનું છે સક્કરશ્રીને પ્રવેશ પર પધારવા વિનંતી સાથે જ વૈશાખ સુદ 11 8 મે માનસ મંદિર મુકામે શ્રી શત્રુંજય નિકેતન બોરવાનું માનસ મંદિર તીર્થના મુખ્ય જિનાલયની ધ્વજા સર્વે સક્કરશ્રી સંઘને ટ્રસ્ટ તરફથી પધારવા માટે ખાસ આમંત્રણ છે સાથે પૂજ્ય સાત્વિજી ભગવાનની વિશ્રામમાં બાલિકાઓનું શિબિર છે 7 તારીખે રિપોર્ટિંગ રહેશે 8 9 10 11 4 દિવસની શિબિર ગઈકાલે સાત્વિજી ભગવતે વાત કરી જેટલી સંખ્યા લેવાની ગણતરી હતી એના કરતાં બમણી થઈ ગઈ છે એટલે શાહપુરવાળા માટે વિશેષ રહેવાની વ્યવસ્થા કરી છે શાહપુરવાળા માટે પોતાના ઘરે જ રહેવાની વ્યવસ્થા રાખેલી છે બરાબર સવારે 7 વાગે પહોંચી જવાનું અને રાતના 10 વાગ્યા સુધીનું શેડ્યુલ સૌ અટેન્ડ કરી શકશે જેમને પણ શિબિરમાં જે પણ બાલિકાઓને જોડાવાની ગણતરી હોય સાત્વિજી ભગવતનો સંપર્ક કરવાની નથી જેમના જીવન નંદનવન બની ચૂક્યા છે એવા ગુરુ ભગવાનના ગુણાનુવાદ તો આજે થશે પણ પૂજ્યશ્રીના શ્રીમુખે સક્કરશ્રી સંઘના દરેક મહાનુભાવોનું જીવન નંદનવન જેવું બને તે માટે પ્રવચન ફરમાવવાની આપણે ગુરુ ભગવાનને વિનંતી કરીએ सारमेतन्मया लब्धं श्रुताब्दैरवगाहनात् भक्तिर्भागवतीर्बीजं स्वर्गापवर्गसम्पदम् 32 नाम का ग्रंथ महामहोपाध्याय पूज्यपाद यशोवी जी महाराज रचित मेरे और आपके लिए इस मंगल श्लोक में एक बात लिखी है कि स्वर्ग और अपवर्ग यदि दोनों की प्राप्ति करनी है तो मैंने अनुभव किया है कि प्रभु की भक्ति को छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज 3-4 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपवर्ग तो हम समझ गए कि मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग माने संसार, स्वर्ग माने वो स्वर्ग की बात मत समझना, पुण्य से जो भी मिलता है सब स्वर्ग की मानसिकता है। मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, मॉल में सब कुछ मिलता है फिर भी कुछ ऐसी चीज होगी जो मॉल में नहीं मिलती होगी। अमेज़न पर कितना भी ऑर्डर करो कोई चीज ऐसी होगी जो नहीं आती होगी। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, दुनिया भर का हर सुख और आत्मा का हर सुख एक ही एड्रेस पे, वो है परमात्मा। मैं इतना पूछना चाहता हूँ आपको, कभी भी भगवान का एड्रेस जब याद आ जाता है तब गुण के लिए याद आता है, धर्म के लिए याद आता है या सुख के लिए भी याद आता है? मुझे आज जवाब आपसे चाहिए। सुबह परमात्मा के सामने हम चैतन्य बोलते उसमें सर्व संपत्ति हेतु शब्द है। व्हाट मीन्स? आप मुझे बता पाएंगे, तुम्हें आनंद आएगा, फिर मैं आगे चलना चाहता हूँ। सर्व संपत्ति हेतु, हेतु माने रीजन, रूट,
बैठा हूं मैं परमात्मा के सामने, दुनिया भर की हर चीज छोड़ करके वो निकल गए चारित्र के मार्ग पे, फिर मोक्ष में गए। और उनकी चरण शरण में बैठने से सारी दुनिया की संपत्ति मिलती है, रूप मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है, शीलवती पत्नी मिलती है, विनयवान पुत्र मिलता है, शरीर की ताकत मिलती है, प्रशंसा मिलती है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको कभी इस एड्रेस याद आया सुख के लिए? सच बोलो, ये अर्थ, ये शब्द तुम बोलते थे ना सर्वसम्मति, आप इनका यदि अर्थ करने को बोले, आप क्या करेंगे? नहीं, आप बताओ, मैं आगे जाना चाहता हूँ। 5-7 चीज आज आपको बताना चाहता हूँ ताकि मेरा और आपका जीवन, चाहे आज जो भी महापुरुष का जो भी दिन है, वो महापुरुष कैसे बने, वो महापुरुष कब तक रहे, कैसे बन सकते हैं, इनकी बात एक कॉमन फैक्टर में करना चाहता हूँ। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सुख के लिए आपको कभी भगवान का एड्रेस याद आया? गए नहीं गए वो नहीं पूछना चाहता हूँ। सच बोलो, याद आते हैं? अब सुख का दो भेद मत पढ़ो, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख। सर्व संपत्ति हेतु में कोई भेद नहीं निकाला है कि मोक्ष की संपत्ति और संसार की संपत्ति सर्व संपत्ति है। मैं 3-4 बात आपको पूछना चाहता हूँ। जीव चाहे निगुत का हो, चाहे देवगति का हो, चाहे मोक्ष का हो, जीव कॉमन फैक्टर है। शरीर हो या न हो, मगर जीव तो होना ही चाहिए। आज मैं आपको 3-4-5 बात करना चाहता हूँ। यदि आपके पास ये है, निश्चित तौर से आपकी सदगति, परम गति नक्की। पहले नंबर का प्रश्न आपके सामने है, संसार बिना पैसा नहीं चल रहा है, आप मानते हो, मैं भी एग्री हूँ। मगर आप इतना बता पाएंगे, गुरुदेव मेरे हर पैसे के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है। पैसा दुर्गति में ले जाने की कितनी भी ताकत रखता हो, मगर आप इतना दावा के साथ बोल सकते हो, गुरुदेव मेरे पैसे के साथ प्रेम का अटैचमेंट है। दूध होता है, पीने का मन तब तक नहीं होता है जब तक शक्कर नहीं होती है, और शक्कर आने के बाद लगता है कि दूध सामने से मांगने का मन होता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको 2 प्रश्न थोड़ा गंभीर से बताना चाहता हूँ। पैसा बढ़ावे ऐसा पुण्य चाहिए? फिर से कान पे सुन लेना, आप ऐसा पुण्य चाहते हो जिससे पैसा बढ़े, या आप ऐसा पैसा चाहते हो जिससे पुण्य बढ़े? पुण्य बढ़े ऐसा पैसा चाहिए कि पुण्य से पैसा चाहिए? आप इतना बता दो, पैसे के साथ प्रेम का अटैचमेंट आपके पास है। वो शालीभद्र, जगड़ू शाह, भामा शाह, पेतर शाह, हमने उन सबके अमीरी की तारीफ नहीं की थी, मगर वो अमीरी के साथ प्रेम जुड़ा हुआ था। आप इतना बताओ, 100 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, करोड़ों रुपया, इनकी बात नहीं करना चाहता हूँ। गुरुदेव बिना प्रेम का पैसा मुझे नहीं चाहिए, इतनी आपकी गारंटी है क्या? जो पैसा आने के बाद मुझे प्रेम से दूर हो जाना पड़े, गुरुदेव वो पैसा नहीं चाहिए मुझे। हाँ बोलो कि ना बोलो? गुरुदेव हमने कभी सोचा नहीं, हमने ये सोचा पैसा चाहिए। सुबह से लेकर रात तक बाजार में गए, हर तरह भागते चले, पैसा बिना नहीं टिकाना पड़ेगा, संसार पैसा बिना नहीं चलेगा, जो भी है। मगर गुरुदेव बिना पैसा, बिना प्रेम पैसा नहीं चाहिए। हमारी हर साधना बिना प्रेम की नहीं होती है। एक इरिया भाई, एक नौकर वाली, एक दर्शन, चाहे मुनि कैसा भी हो, किसी भी गुण स्थानक पे हो, बिना प्रेम इनकी कोई साधना नहीं है।
मैं मुनि जीवन की बात अभी नहीं करना चाहता हूँ, आपकी बात करना चाहता हूँ। आप इतना बताओ गुरुदेव, जब भी पैसा आया हम प्रेम के साथ पैसे को लेके आए, और जो पैसे ने प्रेम से हमें दूर कर दिया वो पैसे को हमने छोड़ दिया। इनकी टॉप प्रायोरिटी हम कभी नहीं रखेंगे। कई लोगों के मन में ऐसा है कि साधु भगवान पैसे के खिलाफ है। हमारे में आपको मालूम नहीं, मार्गानुसारी के 35 गुण में प्रथम नंबर का गुण ही पैसे का है, न्याय संपन्न विभव। सात बात आज आपके से रहना चाहता हूं, मेरी भी आ जाएगी, उसमें आपकी भी बात आ जाएगी। हाँ बोलोगी ना बोलो, बिना प्रेम का पैसा हमें गुरुदेव नहीं चाहिए। और जो पैसा आने के बाद प्रेम की स्मशान यात्रा निकल जाए, वो पैसे से हम दूर हो जाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न, आपके पास कोई भी अननोन आदमी अपने दुख की बात करता है, आप इनके दुख को दूर करो नहीं करो बात नहीं करना चाहता हूँ। बात करने वाला आदमी सही बात करता है ऐसा भरोसा आपको बैठता है या झूठ बोलता होगा, ये बात लगती है। दिया नहीं दिया कुछ बात नहीं करना चाह रहा, सिर्फ उसने बता दिया मैं दुखी हूँ। ये जानने के बाद उनके वचन पर आपको विश्वास आता है या डाउट हो जाता है? क्यों? उसने मांगा भी नहीं तुमसे, रिपीट। आप इनको मिले और तुम वो बोलते बहुत दुखी हूं, बस दैट्स ऑल। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, ये हमारी मेंटालिटी क्यों, हमने उसको पहचाना नहीं, पहली बार देखा, वो मांगता भी नहीं है, डिस्टर्ब भी नहीं करता है, फिर भी पहली बार इनकी बात सुन के मैं लगता है ये शायद झूठ बोलता होगा। व्हाट? नहीं, अब मुझे बताओ। कुछ रीजन तो होगा ना। मांगा भी नहीं उसने। सहानुभूति भी बात, अभी मैं सहानुभूति की बात नहीं की, मैं मेंटली बात की। वो सच बोलता है ऐसा लगता है कि झूठ बोलता होगा लगता है, अभी मेंटालिटी की बात करना चाहता हूं। ઓળખાણ વગર માણસ નથી, એટલે એમ તો મને તમારી ઓળખાણ નથી, પણ વિશ્વાસ જ છે। इनका रूट पकड़ो, प्रेम नहीं है। नंबर 1, गुरुदेव मेरा प्रेम, पैसा चाहे मेरे पास करोड़ों रुपया हो, गुरुदेव प्रेम के साथ चाहिए। तुम कभी एक बार अनुभव करो, फिर पता चलेगा कि प्रेम पैसे को कहाँ लेके जाता है। पैसा नहीं, प्रेम पैसे को कहाँ लेके जाता है। आगे चलना चाहूंगा, गुरुदेव मेरा पैसा प्रेम के साथ चाहिए। नंबर 2, मेरे जीवन में जो भी पुण्य हो वो पुण्य के साथ प्रेम जुड़ा होना चाहिए। बिना प्रेम का गुरुदेव मुझे पुण्य भी तो नहीं चाहिए। मेरे पास गाड़ी आएगी वो प्रेम के साथ लाऊंगा। रिपीट, गाड़ी 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी, गुरुदेव ये पुण्य है। गाड़ी, बंगला वो पुण्य है, रूप वो पुण्य है, अच्छे कपड़े वो पुण्य है, अच्छा भोजन वो सब कुछ पुण्य है। पैसा तो वन ऑफ द पार्ट, मगर पुण्य तो बहुत लार्ज है। गुरुदेव कोई भी पुण्य बिना पैसे वाला मुझे नहीं चाहिए, प्रेम वाला नहीं चाहिए। बोलो हाँ तो बोलो, ना बोलो। ये ठोस निर्णय आपका होना चाहिए। तो मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ, जिस पैसे के साथ प्रेम होगा वो पैसा कभी दुर्गति में नहीं जाएगा, जिस पुण्य के साथ प्रेम होगा वो भी कभी दुर्गति में नहीं जाएगा।
बिना प्रेम का पुण्य दुर्गति निश्चित, बिना प्रेम का पैसा दुर्गति निश्चित। गुरुदेव मेरे कपड़े के साथ प्रेम रहेगा, मेरे भोजन के साथ गुरुदेव प्रेम रहेगा। क्या मामूली मानते हो? भोजन के साथ मेरा प्रेम। हम भगवान महावीर के 27वें भोग की बात करते, कभी पहले भोग की बात हमने कभी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखी। 27वें भोग में मोक्ष में चले गए परमात्मा भोग, तो मुझे आप सबको याद है प्रथम भोग हमने सेव कितना ही बार कर दिया। 27 भाव सेव नहीं करो तो चले, प्रथम भाव सेव कर लो दिमाग में। जंगल में जाना, पहली बार भोजन, जंगल में भोजन करने के लिए बैठना, उस टाइम भोजन याद नहीं आया, प्रेम याद आया। क्या था? क्या याद आया? हाँ, कहाँ वो स्थान बताओ। जंगल, जहां अतिथि की 1% संभावना नहीं थी, वहां नैसाल को याद आया यदि कोई अतिथि मिल जाए तो फिर, सच बोलो, रोज घर में भोजन के लिए बैठते हो, आपको याद है यदि कोई मिल जाए फिर। 27वां भोग, तो मुझे दुख इतना है, कई लोग आज भगवान महावीर के 27 भोग को लेकर के बात इतनी करते हैं कि उसने बिगली उड़ा दिया। नैसाल कब याद आ जाएगा? सम्यक दर्शन का सबसे प्रथम भोग था वो प्रेम वाला भोग। प्रेम से धर्म की शुरुआत और समाप्ति में परमात्मा बनने की गारंटी। भोजन के पहले कोई याद आता है? अतिथि। हाँ बोलोगी ना बोलो? वाई नॉट? इतना तुमने सुना कभी? भगवान को सुना तुमने? कोई पुण्य बंधाने वाला मिलेगा नहीं मिलेगा बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर याद आता है क्या? ये बात मैंने प्रवचन में रखी थी कितने 4-5 साल के पहले, कि एक काम करो, भोजन करने के लिए बैठने के पहले दरवाजे के पास एक मिनट के लिए खड़े हो जाओ। मुनि भगवान कोई भी आता है कि नहीं आता है, मगर एक गरज होगी यदि कोई आता है तो। मैं संकेश्वर के बिहार में अहमदाबाद आ रहा था, अमेरिका से एक बहन मिलने के लिए आई मेरे तक। गुरुदेव आपका प्रवचन सुना था, मन में लगा अमेरिका में ऐसे कोई मिलते नहीं भिखारी, मगर आपने बोला था कि एक बार बाहर जाके बैठो। वो बहन आई और आपने मुझे बता दिया गुरुदेव कमाल हो गया, अमेरिका में ऐसे मांगने वाला कोई मिलता नहीं है, मगर आपने इतना कहा था कि खाने के लिए बैठो, इनके पहले बाहर देख लेना। और गुरुदेव पहली बार जिंदगी में 2 कबूतर दरवाजे पर बैठे थे। इट वॉज अ रियली मिरेकल गुरुदेव। और मेरा बेटा देख के पागल बन गया। प्रेम की नजर, क्या कमाल की बात है गुरुदेव। वो मेरे बेटे को मैंने दाना दिया और कबूतर बेटे के हाथ पे आके दाना लेके निकल गया। पहली बार ऐसा अनुभव गुरुदेव। मस्त होने के बाद दूसरे दिन एक मेहनत की कि क्या हो सकता है, और आपको बताना चाहता हूं होते होते ऐसा हुआ गुरुदेव, अभी मैं आपको मिलने के लिए आई, तब तक रोज 50 कबूतर आते हैं। हमारा पूरा जीवन दीक्षा के पहले दिन से हमारा जीवन प्रेम का जीवन है। जीवन की शुरुआत प्रेम से, जीवन चलता है प्रेम से, और अंत समय तक प्रेम गया। और जो हृदय में प्रेम गया, चाहे वो कोई भी पद पर हो, वो पद की गरिमा खत्म हो जाएगी। आगे मैं चलना चाहूंगा, इनके पहले बात करना चाहता हूं। प्रेम वाला पैसा चाहिए, पुण्य प्रेम वाला चाहिए। नंबर 3, मेरा जो भी परिवार है वो परिवार में प्रेम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
बिना प्रेम का पैसा नहीं, बिना प्रेम का पुण्य नहीं, और बिना प्रेम का परिवार नहीं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके घर में परिवार के बीच में पैसे की बात ज्यादा होती है, पुण्य की बात ज्यादा होती है, या प्रेम की बात ज्यादा होती है? आप मुझे बता पाएंगे आनंद, परिवार के बीच में जब भी संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, सप्ताह में 5 दिन में 15 दिन में जब भी परिवार इकट्ठा होता है, तब टॉपिक पैसे का ज्यादा कि पुण्य का ज्यादा या प्रेम का ज्यादा? तो सर बोलो, आपको ये क्यों बेहतर क्यों नहीं है? ये धर्म की शुरुआत में बताना चाहता हूं ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, प्रेम से तो धर्म की शुरुआत है। परमात्मा की पूजा की तब से धर्म की शुरुआत नहीं है, परमात्मा का दर्शन किया तब से शुरुआत नहीं, प्रेम इंप्लीमेंट किया, धर्म की शुरुआत हो गई। प्रीति अनुष्ठान, एक हाथी ने खरगोश को बचाने के लिए 2.5 दिन तक पैर खड़ा रखा था, धर्म की शुरुआत थी वो। मुझे आप इतना बताओ ना, परिवार के बीच में प्रेम की बात क्यों नहीं होती? वाई नॉट मेक इतना? तुम धर्म के क्षेत्र में यदि तुम्हारा प्रवेश हो, तो मेरे परिवार को भी धर्म के क्षेत्र में बिठाना होगा। इनके बिना कोई चारा ही नहीं आपको। पूजा की बात नहीं करेंगे तो चलेगा, समय की बात नहीं करेंगे तो चलेगा, नौकर वाली की बात नहीं करेंगे तो चलेगा, प्रेम की बात तो करना ही पड़ेगा आपको। मैं रिमांड पे नहीं लेता, मगर पीड़ा इतनी होती, इतने सालों से देव गुरु और धर्म के इतने नजदीक आने के बाद भी तुमने प्रेम को इतना नकार क्यों दिया है, समझ में नहीं आता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट इज वन ऑफ द रीजन यू कैन गिव? सप्ताह में 1 दिन, महीना में भी आपका बेटे को प्रेम की बात आप नहीं क्यों कर सकते हो? ये बहनों को मैं पूछना चाहता हूँ। बेटे को नाश्ते में डिब्बा देता है स्कूल में, डिब्बा भरने के बाद बेटे को क्या बोलते क्या हो? देखो, मुझे पूछे बिना तुम समझ गए नहीं, क्या बोलते हैं? नहीं, हाँ, थोड़ा जोर से बोलो ना यार। हाँ, एकलो खाजे। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये यू आर कैपेबल। आपको मालूम है कि दो ही खाखरा बेटे को चाहिए, और उनको 10 खाखरा दे दो ना, कोई फर्क नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं, अपने घर में बहुत कुछ है। शेयरिंग की मानसिकता बेटे को वहां से नहीं दे तुम, बेटा बिना खिलाए कभी खाना नहीं। और भगवान महावीर का चरित्र बताने के पहले वो बता दो, ये देव मंदिर में जो भगवान महावीर बैठे ने, उनकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। देने के बाद वो भगवान बने थे, बेटा देते चलना। ये लिंक तो नहीं बैठाते हो, बेटे को सीधी भगवान महावीर की बात करते हो, नहीं सार की करो। और बेटा पूछे, मम्मी दूसरे को क्यों देना बेटा, नहीं सार महावीर ऐसे बने, देते हो दे बने। ये रूट तुमने इसके दिमाग में डाल दिया होता तो तुम भूल जाते ने, तो भी बेटा मांगता, मम्मी 2 खाखरा और ज्यादा चाहिए। ये बोल देना कि बेटा तेरे मित्र को देते देते खाली ले जाए, घर पे आकर मैं खिलाऊंगी, मगर किस सबको दिए, ये बोल नहीं सकते तुम। ये मंदिर प्रेम का मंदिर है, प्रभु का मंदिर नंबर 2 में बोलना। सभी जीवों को मोक्ष में भेजने की जिसके भावना की थी, एक भी जीव बाकी नहीं, तब तो परमात्मा बने। माने ये पार्श्वनाथ मंदिर नंबर 2 पे बोलना, प्रेम मंदिर नंबर 1 पे बोलना। हमने केंद्र में उसी परमात्मा को बिठा दिया चुप। और ये स्वभाव इतना मस्त स्वभाव, मैंने सीधा बोल दिया, इस साधु का नाम स्वभाव सुंदर रखेंगे। ज्यादा है अमृतनेश्वरी के पास,
35,000 लड़के अलर्ट ईयर ग्रुप में आज के समय में इतने जो काम किया इतने कम समय में। हम सब टेस्ट मैच के खिलाड़ी है, वो T20 का था। एक बार इनके जीवन को तुम लाल जैसे देखो, लगता है कि 57 साल के दीक्षा, ये उम्र में दीक्षा जीवन भी नहीं, क्या कमाल का काम कर दिया। चाहे वो अंतरिक्ष तीर्थ था, चाहे मानस मंदिर तीर्थ था, चाहे राजकोट में 50,000 लोगों की पब्लिक के बीच में स्लोटर हाउस बंद करने का प्रयास किया, चाहे वो शिविरों थी, बहुत नजदीक से मैंने देखा इनको। मेरे पूरे समुदाय में शायद गुरुदेव को छोड़ के मैं अकेला था जो इनको तू कह के बुलाता था। और मानस मंदिर में जब अमृत नसूरी थे तब मैंने एक बार पत्र में भूलमा में तमें लखी ना क्यों, तुम्हारी तबियत सारी है। इनका जवाब उसने और खुद नहीं लिखा, मगर एक ही लिखा, रत्न समय पूरे समुदाय में तू कह करके प्रेम करने में आप अकेले हो। आपका पत्र पढ़ के मैं बहुत दुखी हुआ, आपने मुझे तमें लिखा, तू लिखना, नहीं तो हमारा संबंध खत्म है। यह प्रेम मैं रिपीट करना चाहता हूं। चाहे रामचंद्र मई की दीक्षा आचार्य पदवी का अधीन है, महाबलसूरी का आचार्य पदवी का अधीन है, पुण्यपाल सूरी का आचार्य पदवी का अधीन है, चाहे है व्रत सूर्य, चाहे मंदिर है, चाहे राजेंद्र समाज है, कॉमन फैक्टर प्रेम है। जिसमें से भी प्रेम गया वो चाहे कैसा भी वो गया अपने काम से। मुर्दा होता है ना, उनके बाद डेड बॉडी तो ऐसी लगती है कि कैसे मर गया। जब बोलते कि इनका अग्नि संस्कार करो, यार एवरीथिंग इज गुड गोइंग, सब कुछ ठीक है, मगर आपको बोलना पड़ेगा अंदर से था ना वो चला गया। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? डेड बॉडी होने के बाद आंख फूट जाती है, कान खत्म हो जाते हैं, वो सब कुछ नहीं, ऐसी चीज पड़ी है। मगर अभी बोलते कि अग्नि संस्कार की तैयारी करो। क्यों गया? अंदर वाला गया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, चाहे गहना शरीर पे कितना भी हो, तबियत एकदम ठीक ठीक लगती हो, फिर भी अग्नि संस्कार हो जाता है जब प्रेम जाता है तब। चाहे कोई भी आचार्य उपाध्याय साधु हो, चाहे अंदर से प्रेम हो जाता है, डेड बॉडी हो जाती है। मुनि और बिना प्रेम का मेरे में स्वाध्याय न मिले, मेरे में तप न मिले, मैं भी पॉसिबल, मेरे में सब कुछ नहीं मिलेगा, मगर मुनि के बाद, अरे निगोद के युग के बाद भी आत्मा तो मिलेगी ना। चींटी हो, गद्दा हो, कुत्ता हो, बैल हो, तब तक वो जिंदा है, जब तक आत्मा है तब तक। आप मेरे से ये चाहते हो कि गुरुदेव आप गुणगान करो, तो सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, मेरा प्रेम आप चाहते हो क्या? मेरे पास जो प्रेम है अमृत सूरी के बाद जो प्रेम था, पुण्यपाल सूरी महाराज के बाद जो प्रेम था, वो प्रेम इंप्लीमेंट करो तो ही गुणानुवाद है, बाकी एकदम बह जाता। प्रेम देखा हमने। मैं कभी सोचा नहीं था अमृत सूरी की शिविर में जो भी गए उनको टॉप 10 का मिलता था ना, टॉप 10 क्या मिलता था? पेंडल है, और मालूम है ना, खुद अपने हाथ से पहनाता था। एक वो दृश्य मैंने कभी ये अनुभव नहीं किया था, मगर कल्पेश ने मुझे बताया गुरुदेव हेमृत में तो खुद पहनाते थे। मैं तो हैरान हो गया, मैं लगा कमाल की बात। और सच पहली बार मैंने जब लड़के को गले में पहनाया, वो लड़के तो ठीक, मैं खुद रो रहा था। इस टाइम में दिल्ली में था जब रात को मैसेज आया कल्पेश का। बिलीव नहीं कर सकता था कि अमृत नसूरी जा सकते इस उम्र में। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मुझे बताएंगे, आप बहुत नजदीक थे ना अमृत नसूरी में, आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन सा गुण पसंद आया? बहुत प्रभावकता थी, पुण्य था, प्रवचनकार थे, क्रिएटिव माइंड था, मैट्रिक पास भी नहीं थे,
मगर अच्छे अच्छे इंजीनियर, समझे ना क्या होता था, वो बोलते थे हम ये सब कागज वगैरह प्लान बन खत्म कर देते, अब खड़ी नहीं इनके पास। और जो विजन लेकर के बैठे थे, और कमाल की बात, आप कभी सोच सकते हो इतना बड़ा तीर्थ बनाया दादर में, मेरी गोद में सर करके अमृत नसरी को मैंने रोते हुए देखा, मतलब क्या हो गया, दुख से नहीं। आपको मालूम होगा इतना बड़ा तीर्थ जिंदगी का बलिदान दे दिया करीबन करीबन, मगर एक गुरुदेव का सपना था कि अमृत शिरडी की ओर जाने वाले लाखों लोग एक प्रभु वचन को प्रभु के पाने के लिए डाइवर्ट हो जाए, ऐसा एक तीर्थ मानस मंदिर की कल्पना। और सबसे बड़ी बात वो थी, रूट से लेकर के शिखर तक अमृत नसरी का प्रभु के प्रति, गुरुदेव के प्रति प्यार था, और कहीं खुद का नाम नहीं था, भुवन भानु मानस मंदिर। मैं रिपीट कर, मेरे से भी तुम प्रेम कर दो, प्रेम लेके जाना, बाकी सब कुछ छोड़ देना। और प्रेम छोड़ करके तुमने मेरे से कुछ भी पाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें में। बिना प्रेम का पैसा नहीं, बिना प्रेम का पुण्य नहीं, बिना प्रेम का परिवार नहीं, बिना प्रेम की प्रज्ञा नहीं। नंबर 4, मेरे पास जो भी प्रज्ञा है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, गुरुदेव प्रेम वाला। आपके बेटे को तुम स्कूल में कॉलेज में भेजते हो डिग्री लेने के लिए, आपने कभी बोला बेटा पढ़ने के बाद प्रेमी बनना? सच में बताओ, ये तो तुम आज यहाँ सुनते हो, बाकी बाल इस चीज को सुनाने वाला कोई बचा ही नहीं। आज ये पूरी यूनिवर्सिटी की शिक्षा डिस्टर्ब क्यों करी? हमारे पास एक शब्द लिखा है, ठाणांग सूत्र में एक शब्द लिखा है, अविनीत हो, उनको वाचना मत देना। मुनि जीवन पाने के बाद भी जो प्रेम को खत्म करके बैठा है, उनको वाचना देना भी नहीं, वो नुकसान का कारण बन जाएगा। सच बोलो, आपने कभी 1 घंटे के प्रवचन में कितना बोलना प्रेम के प्रति, मगर कभी लगता है कि हमारे पास जो जीवन है, पूरा जीवन, वो आपके पास कहीं 1% इनका स्थान नहीं। बिना प्रेम का पैसा नहीं, बिना प्रेम का पुण्य नहीं, बिना प्रेम का परिवार नहीं, बिना प्रेम की प्रज्ञा नहीं, और बिना प्रेम की प्रतिभा नहीं। प्रतिभा, पर्सनालिटी। मुनि से लेकर के आचार्य पदवी तक अमृत नसरी का बहुत निकट का परिचय। एक प्रतिभाशाली आचार्य भगवान थे वो, मगर बहुत नजदीक से जिसने देखा होगा उसने बोला कि प्रतिभा के बाद भी प्रेम में कोई कमी नहीं थी। मैं दिल से पूछता हूं, आपके घर में ये बात होती नहीं है? डॉक्टर बने बेटा, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, प्रेम के साथ? हाँ बोलो कि ना बोलो? हाँ, स्वार्थ, प्रेम पण स्वार्थ જ છે।
आपका बेटा मरीज के प्रति, डॉक्टर बनने के बाद मरीज के प्रति इनका प्यार न हो, आप बेटे को बोले बेटा तूने क्या पढ़ा भी, घरा के प्रति प्यार न तो व्यापारी मत बनना, और अपने खिलाफ जाने वाले चाहे कैसे भी व्यक्ति के प्रति प्रेम न हो, मुनि बनने की मनाही है। साधुत्वम किम नाम सर्व जीव स्नेह परिणाम, सभी जीवों के प्रति प्रेम का परिणाम वही तो साधुता है। सभी जीवों के प्रति एक भी बाकी नहीं। क्या लगता क्या है वो बढ़ जाता है कि समझ में आता है? हाँ, बाहर जाके क्या बोलेंगे? प्रेम प्रेम प्रेम, क्या करना है प्रेम को, क्या करना है? सच बोलो, बाजार में प्रेम की वैल्यू है कुछ है? नहीं, नहीं, बाजार में प्रेम की डिमांड नहीं कहीं। पैसे के साथ प्रेम, पुण्य के साथ प्रेम, परिवार के साथ प्रेम, प्रज्ञा के साथ प्रेम, प्रतिभा के साथ प्रेम, आपकी पूजा के साथ भी प्रेम। देरी जावा मन करे चौथ तृण फल पावे। ऋषभ चिरेश्वर प्रीतमारो पूजा करने के बाद भाव पूजा में प्रवेश करते हो, चैतन्य बोलते हो, प्रेम की शुरुआत। कितना नंबर आया? 6 नंबर आया ना। शायद बोलो, आप दिल से बोलते कि पूजा के साथ प्रेम के साथ पूजा, या तो पूजा के साथ प्रेम। बिना शक्कर की मिठाई मिलेगी, बिना नमक का नमकीन मिलेगा, बिना प्रेम की कोई स्वाद नहीं। कभी कभी इतना दुख होता है कि जिस प्रेम को परमात्मा के हर मार्ग ने इतनी टॉप, सामयिक क्या है मालूम है? सामयिक क्या है? सभी जीवों के प्रति प्रेम, वही सामयिक है। 48 मिनट समय में बैठे तो एक भी जीव की इंसानी वो प्रेम है। आगे चलूं, पैसा, पुण्य, परिवार, बोलो बोलो, इतना है, प्रज्ञा, प्रतिभा, पूजा, लास्ट नंबर परमात्मा। बिना प्रेम कोई परमात्मा बन ही नहीं सकता। ये 7 स्टेप कॉमन फैक्टर लव। एक छोटा सा प्रश्न आज आपको पूछना चाहता हूं, ताकि एक पक्का हो जाए कि हमने गुणानुवाद सभा रखी थी तो हमारे लिए काम करेगी। कोई तो किसी के साथ ही आपकी अनबनी होगी ना, अभी भी आप एक काम करो, और कुछ मैं नहीं, आज लेसन देना चाहता हूं। रात को सोने के पहले जिनके साथ तुम्हारी अनबनी अभी तक है, भगवान को विनती इतनी कर देना, भगवान दिल से विनती करता हूं, इनको तू सुखी कर दे। क्या हुआ? चेहरे पे मुस्कान क्यों आ गई? मेरी है मुश्किल? आपकी अपनी तोड़ के उनको देने की कहां बात करता हूं? आपकी गाड़ी की परवाह ना करो, हुई सिर्फ इतना दिल से भगवान को विनती का, भगवान जो मेरा 1 नंबर का दुश्मन है, इनको तो सुखी कर देना। हाँ, सुबह એના માટે જ કરવાનો છે, મારા માટે હું કરવાનો છે એના માટે। यदि वो नहीं करना तो ये गुणानुवाद सभा किसके लिए है? मैं ये नहीं कहता तुम इनको सुखी कर दो, बस सिर्फ परमात्मा से विनती करना है, भगवान इनको तो सुखी कर देना, तुम्हें देना लेना कुछ नहीं है। हम ये भी नहीं कर सकते
फिर ये बात चाहे तुम कितने भी टॉप पे करो, हम सचमुच जो पाना है वो नहीं पाएंगे। तारा पगनो चूरो बनावी, जारे खीर बनावी, अंगे अंग बने पण मुख पर शीतलता पसरावी, ओ दावा नळ पीनारा, तारा जीवन रहस्यो न्यारा, दुश्मन ने पण पूर्ण प्रेम दी, क्षेम कुशल पूछनारा। ये है मेरे परमात्मा है। मैं सिर्फ रात को बैठ करके 2 मिनट के लिए इनके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकता हूं, भगवान को विनती, फिर ये पूजा क्यों, ये प्रतिक्रमण क्यों, और ये हमारा साधु जीवन क्यों? मैं ये नहीं कहता तुम दुखी को सुखी कर दो, सिर्फ इतना कहना है कि भगवान इनको भी सुखी कर देना। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, यदि तुम ये प्रार्थना नहीं कर सकते, दैट मीन्स तुम दिल से यही चाहते हो ना, वो दुखी ही रहना चाहिए। हाँ, ये आखिर तो यही आउटपुट आया ना कि गुरुदेव हम नहीं चाहते वो सुखी हो जाए, दैट मीन्स तुम क्या चाहते हो, वो दुखी रहे। यूं ये हम, ये धर्मी, ये हमारी पूजा, ये दर्शनम देवदेश, हमारी स्तुति, ये गुरुबंधन। यदि ये सामने वाले को मैं देखना चाहता हूं वो दुखी रहना चाहिए, फिर मैं धर्मी कहां, अरे सज्जन कहां? मैं सच बताऊं, धर्म के क्षेत्र में हमारा फोटो टॉप है, मगर एक्सरे बिगड़ा हुआ है। व्हाट अबाउट दिस इज द एक्सरे, नॉट फोटो। मेरी पूजा देख करके लोग पागल बने, मेरे कॉन्शियस को देख करके लगे यार कमाल कमाल। एक नाम था वर्धमान का, जिनका नाम था रतिलाल जीवन। बहुत नजदीक से मैं देख के आया इनको, बैठा था वर्षों पहले, माने बिफोर 50 ईयर्स। माना साहब, मैंने बोला रति भाई जीवन के कोई ऐसे प्रसंग, गुरुदेव एक प्रसंग ऐसा बना था, जिन जिन साधन में को विभक्ति करता था उनकी आंख शर्म से झुक न जाए, इसके लिए करता क्या था, रात को अंधेरे में उसके घर के बाहर जाकर के गेहूं, चावल, घी और तेल रख देता था। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, उनको शर्म ना आ जाए। और वो इससे खानदान दे गुरुदेव सीधा लेने के लिए थे ना, तो मैंने रास्ता निकाला, यही रास्ता है, अंधेरे में लेके जाना, बाहर सब गुजर के निकल जाना, सुबह वो ले लेते थे, ले भी लेते थे, मगर आंखों की शर्म नहीं लगती थी। और गुरुदेव एक दिन ऐसा हो गया, रखने के लिए गया और दरवाजा खुला था, खुले दरवाजे से मैं पता नहीं चला अंदर चला गया, और न मालूम अंधेरा था, वो जाग गए। जागने के बाद हाथ में सीधी लकड़ी ली और गुरुदेव लकड़ी से मुझे मारा। एक शब्द में बोला नहीं, मार खाते चला। उसी टाइम लाइट हुई, अरे ये तो रति भाई, रति भाई, रति भाई, आप बोलते नहीं होते। रति भाई ने खुद ने मुझे बताया था, गुरुदेव पूरी जिंदगी भर तक साधन में भक्ति करने का आनंद था ना, उसमें सबसे टॉप आनंद वो टाइम आया, लकड़ी खापकर भी प्रेम इतना ही बना रहा। आज जो भी गुणानुमत सुनने के लिए आए हो, चाहे आपकी इच्छा थी मैं अमृत श्री बोलूं, चाहे क्या रामचंद्र सिंह के बोलूं, चाहे इच्छा पुण्यपाल सिंह के महाबल सिंह के बाद बोलूं, चाहे राजेंद्र सिंह का, कॉमन फैक्टर प्रेम। और यदि प्रेम को लेके नहीं जाना है, खुद के लिए सोचना भी नहीं कि मैं आई हूं, चलो एक और नीचे उतर जाओ, और नीचे उतरो। आपका खुद का भाई बिजनेस में आपको डिस्टर्ब किए बिना आगे निकल जाता है, वो जानने के बाद आप निश्चिंत राजी। आपका खुद का भाई आपके बिजनेस को टच किए बिना, डिस्टर्ब किए बिना अपने पुण्य से आगे निकल जाता है, वो देखने के बाद अब निश्चित अंदर से राजी। बोलो क्या हुआ?
हाँ, ईर्ष्या नहीं सकते। सीधू बोलो ना दुखी थी है, ये भी नहीं बोलते, ईर्ष्या है। मन में ये कहना चाहता हूं, मेरे दुश्मन सुखी बन जाए वो इच्छा नहीं, मेरा खुद का भाई मुझे चैलेंज किए बिना वो आगे निकल जाता है, तो भी उनको देख करके भी यदि मैं आनंदित नहीं हूं, फिर ये खोखलेपन की बात खत्म। ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए कभी सेटिस्फैक्शन मन को लेके गुरुदेव मैं सामयिक प्रतिक्रमण नौकरी जब सब कुछ करता हूं, कोई विरोध नहीं है। आपका बेटा बोले नहीं कि मैं 5 साल से कॉलेज जा रहा हूं, तो आप भी उनको धन्यवाद नहीं देंगे। आप बोले कि 5 साल जाने के बाद पास कब होगा, तुम यही बोलते हैं ना तुम? नहीं, यही बोलते हैं ना 5 साल। हाँ, एक बेटे को बाप ने बोल दिया था 5 साल से कॉलेज में था, पास तो कभी नहीं होता। पप्पा आपको मालूम है मेरा कितना ग्रोथ हुआ? क्या ग्रोथ हुआ? पास तो कभी नहीं हुआ। उसने बोला देखो घर से कॉलेज किस रास्ता छोड़ना पड़ता है वो पता चल गया। बिजनेस में जाने वाले बेटे को बोलते हो प्रॉफिट रहो, कॉलेज में जाने वाले बेटे को बोलते हैं तुम डिग्री रहो, भगवान बोलते इतने साल की धर्म साधना के बाद प्रेम दिखाओ। मेरा भाई मेरे से ज्यादा सुखी हो मेरा दीदी, मेरा दुश्मन सुखी हो जाए, मैं प्रार्थना करने के लिए भी तैयार नहीं। मैं जानना चाहता हूं क्यों है, आप मुझे बता पाएंगे क्यों हम इतने नीचे क्यों उतरे? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है, रीजन बताएंगे? पैसा, पुण्य, प्रज्ञा, परिवार, प्रतिभा, पूजा, परमात्मा, एक को भी तुम कैंसर। और ये बात बताओ, 7 में से आपके पास कोई भी हो, यदि प्रेम से जुड़ा है, सदगति पक्की हो, दावा के साथ। अब्जों रुपए के तुम मालिक हो, मगर प्रेम के साथ तुम्हारा पैसा जुड़ा है, आप किसी को दुखी देख नहीं पाएंगे। क्या फर्क पड़ता है गुरुदेव? पुण्य होगा तो फिर मिल जाएगा, देने दो। प्रवचन को विराम देने के पहले राजकोट वाली जयंती में का मैं दृष्टांत देता हूँ। मैं तो खुद राजकोट के चातुर्मास में आपको बहुत मिला हूँ। ब्लैक कोट, धोती, छोटी हाइट, और बात जब करे जीव दिया कि सुनने का मन। गुरुदेव एक गाड़ी यहाँ जाती थी, पकड़ी, एक गाड़ी वहां से पकड़ी, वो स्लॉटर हाउस के मालिक के साथ पंगा लेना पड़ा। गुरुदेव सब कुछ माने पूरी जिंदगी भर तक यही काम किया। मैं नागपुर में चातुर्मास दर्शन समाचार आया राजेंद्र भाई का, गुरुदेव जयंती भाई गए, 78 का मैं होगा। आज तक ऐसा एग्जाम्पल आज तक मैंने सुना नहीं, और जिंदगी में कभी सुनने को मिलेगा कि नहीं वो मालूम नहीं है। गुरुदेव जयंती भाई गए। संसारी आदमी तुम हो, बिजनेस में आपका कॉम्पिटिटर यदि चला जाए, अंदर से एक आनंद होगा, गया। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, हजारों कसाईयों कितने पशुओं को बचाया, कितनी इलीगली ट्रक लाखों रुपए की जमा करा दी, उनको जेल करा दी कसाईयों को। और जिस टाइम राजकोट के पूरे कसाईयों को पता चला जयंती भाई गए, मैं भी भरोसा नहीं कर पाता था, करना पड़ा, सच्चा समाचार था। पेपर की हेडलाइन राजकोट में थी, जयंती भाई जाने के बाद राजकोट के स्लॉटर हाउस के हर कसाई मिले और उनकी श्रद्धांजलि निमित्त दूसरे दिन स्लॉटर हाउस बंद रह गए। We can believe it. पूरा स्लॉटर हाउस, चाहे जयंती भाई कैसे थे, मगर उनका जीवों के प्रति प्रेम मिरेकल था। मर्डर का प्रयास किया, खून का प्रयास किया, फिर भी वो आदमी ने बचा दिया। जीवों के प्रति ऐसा प्यार करने वाला यदि चला गया,
हम इनके नाम से कल स्लॉटर हाउस बंद रखेंगे। लास्ट बात करना चाहता हूँ, तुम जहाँ जाते हो वहाँ आपको प्यार मिले या ना मिले, जहाँ से निकलते हो वहाँ प्यार मिलना ही चाहिए। तुम जहाँ जाते हो वहाँ प्यार न भी मिले, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी खुद नहीं है, सामने वाले को आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन किसी के घर में मेहमान करके गए, अरे मैं तो कहता हूँ होटल में तुम गए, बाहर निकलने के पहले होटल वाले को भी तुम पर प्यार हो जाए। टिप दी इसलिए नहीं, नेचर के हिसाब से। सर बोलो, इसमें आपको कितना मार्क, जहाँ गए वहाँ कितना प्यार मिला नहीं, जहाँ से निकले वहाँ प्यार लेके निकल गए, ये क्वेश्चन में आपको कितना मार्क मिले। चलो मेरी ओर से क्वेश्चन है, बोलो इसमें तो बोलो यार कितने मार्क्स मिले हैं। आप जहाँ जाते हो वहाँ कितना मार्क मिला, वो नहीं निकले तब। स्थिति ऐसी होती ना, कभी कोई आता है तो बोलते कब आए। अभी तो सच बताऊं, तुम्हारी तो मेरे संस्कार को देख करके हमारा वैराग्य इतना मजबूत हो जाता है। हाँ, बाल बाल बचे हैं। मेहमान तो मेहमान है, मालिक भी मेहमान बन गया अभी। हाँ। महाप्रभावक आचार्य भगवान अमृतन सूरी, आपकी 2 किताब, डाइनिंग टेबल, दूसरी आप बोलेंगे चालो चिना, वो किताब ने तहलका मचा दिया। परमात्मा की भक्ति करने के लिए जिसको भी लेडर चाहिए, सीढ़ी चाहिए, क्या विधि, क्या उपयोग, क्या अहोभाव, कैसे, क्यों, हर लॉजिक का जवाब चालो छिना ने इस किताब में आपने दे दिया। और क्या डालना पेट में, मैं सच बताऊं, अच्छे अच्छे साधु प्रभावक आचार्य लोगों को जो पता नहीं था ये भोजन की व्यवस्था क्या हो सकती है, और कुछ इतनी डिटेल से उसने लिखा है कि जैसे लगे, आशा का नहीं करता हूं मगर लगे वेरी नियर टू आगम कोई याद करा दे, ऐसी एक ताकत 2 किताब लेकर के पूरे जैन संघ को नहीं, पूरे समाज पर आपने जबरदस्त उपकार किया है। ऐसी एक अद्भुत विभूति कल्पेश ने मुझे पत्र लिखा था, पत्र दिखाया उनका, वो पत्र में सिर्फ इतना लिखा था, कल्पेश, शायद 3 दिन पहले का पत्र कल्पेश ने मुझे बता दिया, कल्पेश और कोई इच्छा नहीं है, एक भगवान से मिलने 10 साल मुझे और यदि मिल जाए और मिल जाए, लगता नहीं मिलेगा मगर 10 साल मिले, बहुत कुछ करना चाहता हूँ प्रभु शासन के लिए। ये प्यार मैं कभी बोलता था, हेमरत्ना थोड़ा श्रम कम कर, रत्ना कभी भी पूरा हो जाएगा। बेटर है कि वो जीवन समाप्त हो, इनके पहले जो भी ताकत, एनर्जी है, सब कुछ ठीक ठाक करते चलो। ये अद्भुत ताकत लेकर के फिर से बोलूँ, गुरु जी पार्श्वनाथ का मंदिर बोलना मगर साथ में बोलना ये प्रेम मंदिर है। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे इसलिए कि पूछने वाला पूछेगा तेरे में प्रेम कितना है, तो भी निकलना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, यदि आज आप गुणानुवाद सचमुच में दिल को छूने वाला यदि आपको लगता है, 7 चीज को छोड़ के ना, साथ में कई 2-3 चीज आपको लागू पड़ती है, मुझे भी। पैसा मुझे लागू नहीं पड़ता तो पुण्य मुझे भी लागू पड़ता है, प्रज्ञा मुझे भी लागू पड़ती है, परिवार मेरा भी है, प्रतिभा मेरे पास भी है, सब कॉमन फैक्टर। बताऊं, नवकार में कॉमन फैक्टर क्या है? नमो, और नमो वो प्रेम है। अब किसी गली में से निकलो, प्रेम को छोड़ के नहीं जा पाएंगे आप।
गला पकड़ लेगा, मैं कहाँ हूं बोल, और हम बोलते कि तू नहीं चाहिए, आज तय कर लो, 2-3 एड्रेस करो। एक भले टप मैं एक पूछना चाहता हूं, मेरे दुश्मन को सुखी कर देना, ये प्रार्थना करने में आपको दिक्कत क्या है? नहीं, व्हाट इज द डिफिकल्टी? એને આપણને તકલીફ આપી है, ભલે યાદ આવે અત્યારે તેમાંથી પાછી નહીં, તમને ખાલી પ્રાર્થના કરવામાં તકલીફ શું? તમને એમ લાગે છે કે તમારી પ્રાર્થના ભગવાન સાંભળશે ને સુખી દીધી છે? તમને કહું, भगवान मुझे सुखी करना, वो प्रार्थना अभी तक सफल नहीं हुई, वो सफल हो जाएगी। डेट में तो डर है ना, यदि मैंने भगवान से प्रार्थना कर दी और भगवान ने सुन लिया और साला हमको सुखी कर दिया, क्या मेरी प्रार्थना मेरे लिए सफल नहीं हुई? इनकी ये मैं 2 ही बात करूंगा, अपने मन का 2 चीज करना, एनालिसिस एंड पोस्टमार्टम। मैं खुद अपने आप को ऑब्जर्व करते रहता हूँ कि इतने साल के दीक्षा जीवन के बाद, चाहे मैं किताब लिखता हूँ, प्रवचन करता हूँ, यदि प्रेम की कमी आ गई, मेरा सब भी फिर हो सकता है। जिन शासन के कोई भी क्षेत्र में तुम कोई भी पद पे पहुंच जाओ, मुनि पद, पन्यास पद, आचार्य पद, यावत गच्छाधिपति पद, चाहे कोई भी पद के पहुंचने के बाद संग प्रेम यदि कम हो गया और मुनि जीवन पाने के बाद भी वैर, विरोध, विभाजन और विग्रह में जिसने रस लिया, वो गया काम से। चाहे मैं कितना भी अच्छा मेरा जीवन चलता है, वैर, विरोध, विभाजन और विग्रह, 4 चीज संसार को जम सकती है, मुनि को कैसे जमेगी? प्रभु से मैं विनती करता हूं, आज एक साथ 6 प्रसंग, भगवान की जिनालय की सालगिरी, प्रशांत मूर्ति पूज्यपाद, आपको मालूम नहीं है, मेरे गच्छाधिपति राजेंद्र सुमाज बहु आलोचना लेने वाले को जब आलोचना देते, मैंने आपके मुंह से सुना है रत्नमय, मैं करीबन इरियावई का स्वाध्याय देता हूँ, इरियावई बहु आलोचना में, और इतना कहता हूँ, जब इरियावई बोलो तेरे दिल से याद करना, इकिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया, इन सबकी मैंने विराधना की। ये क्या था? ये प्रेम, इरियावई वो प्रेम है। लोगस सूत्र वो भी भगवान के प्रति प्रेम है, नामस्तव सूत्र। ये हमारे आचार्य भगवान अमृत सूरी को भी मैंने बात की और तुमने खुद ने अनुभव भी किया है। ये प्रभु प्रेममय, गच्छाधिपति प्रेममय, आज रामचंद्र माँ की और महाबल सुमा की, पुण्यपाल सूरी की, आचार्य का दिन, सभी पूरे जैन शासन में 34वीं संघ, इनकी एक ही आइडेंटिटी है, सबके पास प्रेम है, और वही प्रेम मुझे भी तो चाहिए, आप सबको भी चाहिए। मैं चाहता हूँ आज गुणानुवाद किसी व्यक्ति का नहीं हुआ है, प्रेम का हुआ है। वो प्रेम मेरे और आपके जीवन में, हृदय में, मन में, व्यवहार में और वचन में सक्रिय बनता चले, यही गुणानुवाद का श्रेष्ठतम आउटपुट रहेगा। प्रार्थना करो जो आएगा सैनी दुश्मन ने शाहपुर थोड़ું ટૂંકું પડ્યું,
એ જગ્યાએ મેં પ્રવચનમાં વાત કરી, ઊભો થઈ ગયો કે મને કીધું દુશ્મન કોઈ છે જ નહીં, કોને માટે પ્રયત્ન કરો. ગમ્યું સાહેબ, કોઈ એવું છે જ નહીં. આવા દિવસ આપણા ક્યારે આવે ખબર નથી, પણ બસ એટલું લઈને જઈએ. બાર કોઈ પણ પૂછે કે કયા મહાપુરુષમાં શું હતું, તમે કહી શકો કે બહુ યાદ નથી રહ્યું, પણ એટલું યાદ રહ્યું કે